academic experience, which includes 8 years as a school teacher, 9 years as a lecturer, 3 years as a reader, and 10 years as a professor. To his administrative experience, he has directed the IASE and College of Education, Gujarat Vidyapeeth, for 3 years from the year 2008 to 2011. He is a nominated trustee of Gujarat Vidyapeeth since February 2018, and he has been the in-charge registrar since May 1st, 2019. He has also guided 12 students uh, who are awarded PhD degree, and 7 students are registered under him. His area of specialization, that is education. His field of specialization is education. Specialization and work of teaching, research and extension in educational technology, methodology of research, Nai Talim and teacher education. He has authored 9 books and he has 89 papers in national as well as international journals. So he has contributed of about 250 poems and about 20 short stories in Gujarati under the pen name Parth Mahaprabhu. Sir, we welcome you for this session, and we are here. We would like to hear a lot of information and knowledge from your session today. So, handing over the mic to you, sir. Thank you very much, Ma'am Prashil Mehta. I'm Dr. Mona Mehta, sir. Prashil Okay. is my son. Yeah. I am sorry. It's okay. But It's okay, your sir. name It's is okay. displayed as Prashil Agree. Mehta. Agree, sir. Okay. Agree. Yeah. So first of all, I would like to mention that I am not here to tell you anything. I am here to listen from you. But for that, I will make some points and then we will open the session for discussion. You will be able to interact. I will show you some slides I have prepared for this session, and on those slides, based on those slides, I will make my some points clear. So let's begin. Today's topic is value education and sustainable society. अब इस विषय के बारे में मुझे जो कहना है वो मैं शुरू यहाँ से करता हूँ. I begin with the meaning of value. What is meant by value? There are two concepts: value education and sustainable society. So in the beginning, I would like to clarify the meaning of value which I accepted for this presentation. And the meaning is, value means principles or standards of behavior, one's judgment of what is important in life. So this is the meaning. Actually, it is a dictionary meaning. It is given in a dictionary. So the very word value means standards of behavior and one's judgment of what is important in life. One's judgment of what is important is reflected in the behavior of a person. So ultimately, the behavior is the value. हम कुछ भी करते हैं, हमारा मूल्य उसमें प्रकट होता है. बोलते हैं तब भी मूल्य प्रकट होता है, हम कुछ करते हैं तब भी हमारा मूल्य उसमें दिखता है.
तो ये अर्थ लेकर हम आगे बात करते हैं। तो ये चीज वैल्यू, द मीनिंग विच आई हैव एक्सेप्टेड इज फॉर दिस प्रेजेंटेशन। अब जब हम बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन की, तो क्या हम मूल्य शिक्षा दे सकते हैं? मूल्य सिखाया जा सकता है, या मूल्य अपने आप व्यक्ति सीख लेती है? ये प्रश्न है। अगर हम ये मानकर चले कि वैल्यूज आर कॉट एंड नॉट टॉट, तो इसका मतलब है वैल्यू एजुकेशन इज नॉट पॉसिबल। हम सिखा ही नहीं सकते। वैल्यू को हमें सीखना है। हम परिस्थिति में से हमें जो दिख रहा है, हमारे अगल बगल में जो कुछ हो रहा है, उससे हम वैल्यूज सीख लेते हैं। तो हमारी सोसाइटी से, हमारी संस्कृति से, हमारे अड़ोस पड़ोस से, हमारे खुद के फैमिली से हम ये वैल्यूज सीख लेंगे। तो if we accept that values are caught and not taught, then there is no need of value education. Formal education for values is not required if values are caught and not taught. Now, if the values are taught, then the value education is required. So, what is the correct answer of this question? Are values caught or taught? सही में अगर हम इस प्रश्न को देखें तो ये दोनों चीजें सही है। वैल्यूज आर कॉट एज वेल एज टॉट। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपने आप सीख लेते हैं। कई बार तो ऐसे सीख लेते हैं जैसे हमें पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं होता है और हमने सीख लिया होता है। in a special way, the values are caught. We are not aware of. तो कई बार ऐसा होता है जब कुछ हमारे इर्द गिर्द घटनाएं घटती है तो उसमें से हम सीख लेते हैं। किसी को हम देखते हैं तो उसमें से हम सीख लेते हैं, और जो हमने सीखा है that will be reflected in our behavior. तो हमने जो सीखा है वो, ये it is not necessary that we learn something from a person or a situation or a society. We can learn from a book also. We can learn from a picture also. We can learn from an imagination also. So values can be caught from anywhere. लेकिन ये क्या होती है? जो मूल्य हम पसंद करते हैं, जिसे हमने सीख लिया है, पकड़ लिया है, ये वैल्यू, ये मूल्य हमारी पसंद होता है। इट इज अवर जजमेंट। हमने कुछ निर्णित किया, ये हमारा मूल्य है। हमारा मूल्य हमारे प्रत्येक निर्णय में रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है। तो निर्णय एक इट्स अ बिहेवियर। जब हम कुछ तय करते हैं तो ये वर्तन है और उसमें हमारा मूल्य प्रकट होता है, मूल्य प्रतिबिंबित होता है। तो इस हिसाब से अगर हम इसे सीख लेते हैं तो इसके लिए वैल्यू एजुकेशन की जरूरत नहीं है।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसे व्यक्ति को सीखना चाहिए, ऐसा माना गया है। एक समुदाय ने, एक सोसाइटी ने ये तय किया है कि ये एक कुछ चीजें ऐसी है जिसे व्यक्ति सीखे तो अच्छा है। तो उस चीजों के लिए, उस मूल्यों के लिए औपचारिक शिक्षा की जरूरत रहती है। औपचारिक शिक्षा से अवेयरनेस आती है, जागरूक बनती है व्यक्ति, और उस व्यक्ति को पता लगता है कि उसे किस दिशा में सीखना है, कौन से मूल्य सीखने हैं। तो ये दोनों चीजें जरूरी है। वैल्यू एजुकेशन भी जरूरी है और अपने आप वैल्यू एजुकेशन हो जाए ये भी जरूरी है, और ये होता रहता है। हम माने या न माने, हम चाहे या न चाहे, हमें मूल्य सीखने को मिलता है, हम मूल्य सीख लेते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ चलती रहती है। तो जिसे हम वैल्यूज आर कॉट कहते हैं, उसमें जो शिक्षा होती है, वैल्यू एजुकेशन होता है, वो अनौपचारिक रूप से होता है। और वैल्यूज आर टॉट जिसे हम कहते हैं, उसमें जो वैल्यू एजुकेशन है वो औपचारिक है। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ द वेज आर देयर फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का शास्त्रीय अर्थ क्या होता है? C.W. गुड ने जो एक डेफिनेशन दी है, मैंने यहाँ वो रखी है। वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेस by means of which a person develops abilities, attitudes, and other forms of behavior of the positive values in the society in which he lives. तो ये डेफिनेशन C.V. गुड ने दी है। It's an aggregate of all the process by means of which a person develops abilities, attitudes, and other forms of behavior. Now, the two words which are included in this definition are very important. Positive values in the society. It means values can be positive, values can be negative. It depends on the person, the perception of a person. What I like may be unliked by others. जरूरी नहीं कि सबको वो पसंद आए। मेरी पसंद औरों से अलग हो सकती है। तो मेरी पसंद जो है वो औरों से अलग है, इसका मतलब है औरों को कुछ और पसंद है। अब ऐसी चीजें जो मुझे पसंद है, औरों को पसंद नहीं है, और मैं परफॉर्म करता हूं, मेरे बिहेवियर में वो दिखाता हूं, तो औरों के लिए वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ औरों के लिए का मतलब है फॉर द सोसाइटी। इफ सोसाइटी डिसाइड्स दैट सम बिहेवियर्स आर नॉट acceptable and a person performs those behaviors, then it is called negative values. जो इच्छनीय नहीं है, समाज के लिए जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नेगेटिव वैल्यूज कही जाती है। तो फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी इट डिफर्स। कहीं पर कुछ नेगेटिव माना जाता है, वही कोई और सोसाइटी में पॉजिटिव माना जाएगा, हो सकता है। तो ये डेफिनेशन है वैल्यू एजुकेशन की। दो तरीका है। वन इज एक्सप्लिसिट वैल्यू एजुकेशन, अनदर वन इज इम्प्लिसिट
वैल्यू एजुकेशन, जिसे हमने कॉट और टॉट के रूप में देखा, वही बातें यहाँ पर है। ये there are two types of value education: formal education and informal education. Explicit values are taught, implicit values are caught. Now the second term is the concept in our today's session's title, sustainable society. ये लेस्टर ब्राउन ने 1981 में दी हुई डेफिनेशन है। One that is able to satisfy its needs without diminishing the chance of future generations. हम जब जी रहे हैं इन प्रेजेंट, तो हम खुद गर्ज बन के जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास है हम वो यूटिलाइज कर ले, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ सोचे ही नहीं, तो ये सस्टेनेबल सोसाइटी नहीं है। सस्टेनेबल सोसाइटी ये है वन दैट इज एबल टू सेटिस्फाई इट्स नीड्स, लेकिन विदाउट डिमिनिशिंग द चांस ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। आने वाली पीढ़ी के कोई चांस कम नहीं करेंगे। तो ये सस्टेनेबल सोसाइटी की डेफिनेशन है। अगर हम आज की बात करके जी रहे हैं और कल को ख्याल में लेते ही नहीं है, कल का हम कुछ सोचते ही नहीं है, तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। Sustainable communities can be described as places where the needs of everyone in the community are met and people feel safe, healthy and ultimately happy. ये जगह है। People feel safe। सस्टेनेबल सोसाइटी का ये हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Audible. Yes, sir. ओके। हाँ, तो जिस कम्युनिटी में लोगों को लगता है कि वे सेफ है, सलामत है, वो सोसाइटी सस्टेन करेगी, ये सस्टेनेबल होती है। अगर हेल्दी है तो ये सस्टेन करेगी और अल्टीमेटली यही सोसाइटी हैप्पी सोसाइटी बनेगी। तो सस्टेनेबल सोसाइटी सेफ है, हेल्दी है एंड अल्टीमेटली हैप्पी है। ये इसके कुछ लाक्षणिकताएं हैं जिससे हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसी जगह की जहाँ पर लोगों को सेफ फील होता है, हेल्दी रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। आवर एनवायरनमेंट इज एप्रिशिएटेड, प्रोटेक्टेड एंड एनहेंस्ड and damage to the environment is minimized। जिसे हम सस्टेनेबल कम्युनिटी कहेंगे, तो सस्टेनेबल सोसाइटी कहेंगे, वो जगह पर क्या होगा, उस सोसाइटी में क्या होगा, ये दूसरी बात है कि आवर एनवायरनमेंट इज एप्रिशिएटेड, प्रोटेक्टेड एंड एनहेंस्ड एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट इज मिनिमाइज्ड। तो दूसरी बात यह है कि हम अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, इसे मेंटेन करेंगे, इसे प्रोटेक्ट करेंगे और इसमें हम कुछ प्रदान करेंगे जिससे ये
एनहेंस हो, और खासकर we will not damage the environment, or the damage to the environment will be minimized. तो हम ये एक जागृत रहेंगे कि हमारे हमसे जो एनवायरनमेंट को कोई ना कोई नुकसान जो हो रहा है तो वो मिनिमाइज्ड हो, कम से कम हो, क्योंकि हमने ऐसी जीवन शैली बना ली है कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान किए बिना तो अब जी ही नहीं सकते. नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. तो कोई न कोई रूप में हमें ये देखना होगा कि ये डैमेज जो नुकसान है एनवायरमेंटल वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो. और एक जो लाक्षणिकता है वो ये है कि आवर इकोनॉमी इज वाइब्रेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर इम्प्रूव्ड एंड आवर वर्किंग लाइव्स आर मोर रिवॉर्डिंग. जहाँ सस्टेनेबल सोसाइटी होती है वहाँ इकोनॉमी वाइब्रेंट होती है, गतिशील इकोनॉमी होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है और वर्किंग लाइव्स आर मोर रिवॉर्डिंग. तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सस्टेनेबल सोसाइटी में होती है, लेकिन हमें साइमल्टेनियसली ये सोचना है, ये जो यहाँ हम बात कर रहे हैं इट इज़ एन आइडियल पिक्चर ऑफ ए सस्टेनेबल सोसाइटी. हमें ये भी सोचना है कि द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग कैसी है, हमारा समाज कैसा है, हमारी कम्युनिटी कैसी है, हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ इसमें से क्या है क्या नहीं है. यही तो जागृति है ना. अगर हम सभान है तभी हम सोच पाएंगे कि ये जो हो रहा है वो ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक नहीं है. अगर ये ठीक है ठीक नहीं है वाला निर्णय अगर हम कर पा रहे हैं, जजमेंट ले रहे हैं, देन ये हमारा मूल्य बनेगा, क्योंकि यही हमारे वर्तन में, हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा. कुछ और एट्रीब्यूट्स है सस्टेनेबल सोसाइटी के. एक तो है ये सेल्फ सफिशिएंट होती है. जो सोसाइटी सेल्फ सफिशिएंट है वो सस्टेन कर जाती है. अभी हमने देखा मार्च से शुरू करके जो लॉकडाउन आया, हमें पता लगा कि हम कितने सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है या नहीं है. लेकिन हम कहाँ पर रह रहे हैं उस पर ये निर्भर करता है. लगता था कि कोई शहर में कोई सोसाइटी है जो अर्बन सोसाइटी है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, लोगों को गांव से शहर में आने का जुनून रहता है. लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो ये माना गया, ये समझा गया, ये जाना गया कि शहरों से ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट गांव है, और इसीलिए शहरों से भारी संख्या में लोगों ने गांव की ओर माइग्रेशन शुरू किया था, क्योंकि वहाँ सेल्फ सफिशिएंसी है, ज़्यादा है. शहर से ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंसी वहाँ पर है. इसका मतलब ये नहीं कि शहर में मुश्किल है और गांव में मुश्किलें नहीं है. गांव में जो मुश्किलें है वो अलग किस्म की है, शहर में है वो अलग किस्म की है. लेकिन जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें गांव ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है. नॉन पॉल्यूटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज
that provide the power to drive sustainable energy systems. ये भी एक एट्रीब्यूट है. नॉन पॉल्यूटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जैसे सेल्फ सफिशिएंसी है तो ऐसे ये भी नॉन पॉल्यूटिंग है तो सोसाइटी. रिन्यूएबल रिसोर्सेस दैट प्रोवाइड द पावर टू ड्राइव सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स, जहां पर ज्यादा है वो सस्टेनेबल है. जैसे वाटर हार्वेस्टिंग जहां पर होता है तो वो सस्टेनेबिलिटी की ओर ज़्यादा है. अगर हम सोलर सिस्टम से काम चला रहे हैं, सोलर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि उतना हम कार्बन कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉन पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट में है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस का हम उपयोग कर रहे हैं. more efficient farming techniques and new technologies that improve yields. टेक्नोलॉजी से ज़्यादा नुकसान हो रहा है. एनवायरमेंटल जो तकलीफें हैं, अगर मोर एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स अगर हम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे मानो अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया है और ज़्यादातर लोगों को ये भाने लगा है और ये पसंद कर रहे हैं किसान भी, तो मोर एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर आ गई और इस्तेमाल होने लगी तो इससे जो यील्ड्स है वो भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो उससे आमदनी भी बढ़ेगी. और इसके लिए नई टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी हमें लानी पड़ेगी. रिड्यूस्ड कंजम्पशन दैट हेल्प्स एलिमिनेट वेस्ट. रिड्यूस्ड कंजम्पशन, इतना वेस्ट है. आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में जो आया है वो है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ई वेस्ट की जो समस्या बनी है वो बहुत बड़ी है. हम अगर अपने घर में देखें कितना ई वेस्ट है. बिगड़ा हुआ मोबाइल हमारे घर में है, बिगड़ा हुआ काम नहीं करने वाला कोई मिक्सचर है, अगर हमने कोई रिपेयर करवाया है वॉशिंग मशीन या फ्रीज, तो उसमें से निकला हुआ कोई पुर्जा भी हमारे घर में पड़ा हुआ है, कोई बिगड़ा हुआ चार्जर है, बंद चार्जर है, टूटा हुआ कोई वायर है, बहुत चीज़ें हैं, सीडीज है, डीवीडीज है, क्या क्या है. तो ये सब जो वेस्ट है उसे हमें एलिमिनेट करना है. तो रिड्यूस्ड कंजम्पशन, उपयोग ही कम होगा तो वेस्ट भी कम निकलेगा. अपरिग्रह की जो बातें हैं ये इसके साथ जुड़ी हुई है. जितना जरूरी है अगर हमारे पास उतना ही है और हम उतना ही रखते हैं तो फिर कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन हमें जितना जरूरी है, जितना हमें चाहिए, उससे भी ज्यादा इकट्ठा करके बैठे हैं, इसीलिए ये वेस्ट है. Every human has equal access to basic needs like nutrition, shelter, education and healthcare. ये जरूरी है और सस्टेनेबल सोसाइटी में ये एट्रीब्यूट है. बेसिक नीड्स लाइक न्यूट्रिशन, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ,
ये 4 चीज है जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत है और सबको मिलनी चाहिए, इक्वली मिलनी चाहिए। न्यूट्रिशन, खाना मिल जाना चाहिए, पोषक आहार मिलना चाहिए, रहने को छत चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। अगर इतना सबको मिल गया तो ये सस्टेनेबल सोसाइटी है। सस्टेनेबल बनने के लिए ये बेसिक नीड्स सभी के लिए, एवरी ह्यूमन, सभी के लिए इक्वल एक्सेस में होनी चाहिए। वो गांव है तो भी, शहर है तो भी, वो कहीं पर हो, ये चीजें, ये बेसिक नीड्स है तो ये होनी चाहिए। अगर हमने बहुत ग्रोथ कर लिया, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, वो हमने कर लिया, हमारा पर कैपिटा इनकम कितना भी हो जाए, लेकिन इक्वल एक्सेस टू बेसिक नीड्स नहीं है, तो ये सस्टेनेबल सोसाइटी नहीं है। कुछ लोगों के पास ये एक्सेस आ जाए न्यूट्रिशन, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए, और बाकी के लिए न हो, तो ये सस्टेनेबल सोसाइटी नहीं है। इक्वलिटी, ये भी सस्टेनेबल सोसाइटी का एक एट्रीब्यूट है। इकोनॉमिक सिस्टम्स which are transparent, ethical and built on fair and equitable practices, ये भी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो इक्वल एक्सेस हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट है, एथिकल है और बिल्ट ऑन फेयर एंड इक्विटेबल प्रैक्टिसेस है इकोनॉमिक सिस्टम, तो फिर इक्वल एक्सेस जरूर होगा। ये जुड़ा हुआ है। अगर इक्वल एक्सेस मिल गया तो बेसिक नीड्स, तो फिर सस्टेनेबल सोसाइटी बन सकती है। कंपनीज एम्प्लॉइंग सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मुनाफा ज्यादा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये सोच से अगर हम निकल जाए, अगर हमारा एटीट्यूड वैल्यू बेस्ड हो जाए, वैल्यू बेस्ड का मतलब है ऐसा मूल्य आधारित हमारा बिजनेस बने, कंपनीज ऐसा बिजनेस करे जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है, ऐसे वैल्यूज पर आधारित, जिसे हम ट्रांसपेरेंट, एथिकल एंड बिल्ट ऑन फेयर एंड इक्विटेबल प्रैक्टिसेस कहते हैं, ऐसा, then the society can be sustainable. प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम ट्रांसपेरेंट है, एथिकल है, हम ये पूरी चिंता कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये एट्रीब्यूट्स सस्टेनेबल सोसाइटी के हैं। मैं एक ऐसा स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं जो महात्मा गांधी का बहुत ही ज्यादा कोट किया गया ऐसा ये कोटेशन है। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एनी मैन्स ग्रीड। हम जिसे सस्टेनेबल सोसाइटी कहते हैं, उस सोसाइटी में रहने वाली व्यक्ति किस वैल्यूज के साथ रहती होगी, तो ये इसका मानदंड है। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड, हर एक के लिए जो चाहिए वो है, हर एक के लिए पर्याप्त है। इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड, जिसे हम जरूरत कहते हैं,
जिसे हम अनिवार्यता कहते हैं, अगर वो हमें चाहिए तो उसके लिए धरती पर सब कुछ है, बट नॉट एनी मेन्स ग्रीड। लेकिन एक व्यक्ति की लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये सस्टेनेबल सोसाइटी बनाने के लिए हमें ये वैल्यू की जरूरत है, ये मूल्य हमें चाहिए। अगर हमारी जो ज़रूरतें हैं वही हमें पूरी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे संसार में जितने भी लोग हैं सबकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। धरती पर उतना है, काफ़ी है। लेकिन किसी एक व्यक्ति का भी अगर लोभ, लालच पूर्ण करना है तो ये नहीं हो पाएगा। लियो टॉल्स्टॉय ने जो कहा था, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, तो ये 2 गज जमीन की ही जरूरत है, लेकिन हमें तो पूरी पृथ्वी चाहिए। अगर हम हमारी जरूरतों की चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, ले लेते हैं और जी रहे हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है और औरों को भी हमसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर हर एक व्यक्ति ऐसे ही जी रहे हैं तो न तो उनको तकलीफ होगी न किसी और को तकलीफ होगी, तो ये पूरी सोसाइटी सस्टेन करेगी। लेकिन अगर किसी एक के मन में लालच है तो वो खुद की ज़रूरतों से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा और इससे किसी एक की ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। तो इक्वलिटी वहाँ पर टूटेगी। कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति का सामान इकट्ठा करता है तो किसी एक का सामान उनके पास ज़्यादा है, किसी एक के पास सामान नहीं। ये हर एक व्यक्ति को सोचना है, क्योंकि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एनी मैन्स ग्रीड। तो महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट आधार में रखकर मैं आगे की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ ये गुजरात विद्यापीठ है, और गुजरात विद्यापीठ में अभी गुजरात विद्यापीठ का 100वां साल चल रहा है। इट्स ए सेंटिनरी ईयर ऑफ गुजरात विद्यापीठ। बापू 150 का सेलिब्रेशन हमने किया है और गुजरात विद्यापीठ में हम इस एनवायरनमेंट को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे आधार बनाकर मैं मेरी बात आगे करना चाहता हूँ। गांधीयन मॉडल ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटी, गांधी जी के मन में ये क्या था सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए? तो नॉन मटेरियलिस्टिक, अकॉर्डिंग टू गांधी, a sustainable society is non materialistic। भौतिकवादी नहीं होगी। अगर भौतिकवादी है कोई तो उसे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। गांधी तो अपरिग्रह की बात कर रहे हैं। अगर हमें 2 कपड़ों से चलता है तो हमें तीसरा नहीं चाहिए, ये उनकी सोच है। अगर हमें 1 मकान से चलता है तो हमें दूसरा मकान क्यों चाहिए? अगर हमें 2 कमरों से चलता है तो हमें तीसरा कमरा क्यों चाहिए? नॉन मटेरियलिस्टिक सोसाइटी होगी तो ये सस्टेनेबल होगी। दूसरा है नॉन वायोलेंट होगी। ये गांधी जी के विचार से तो अगर हम अपरिग्रह नहीं करते हैं तो हिंसा ही करते हैं। परिग्रह करना
ये हिंसा है। हमारी जरूरतों से ज्यादा हम इकट्ठा करेंगे तो ये वायोलेंस होगा, क्योंकि हम किसी और का हक छीन रहे हैं। गांधी जी के जीवन का एक बहुत जाना माना प्रसंग है कि अहमदाबाद में साबरमती के तट पर जो आश्रम उन्होंने बनाया, वहां पर सुबह में बैठ के वो दातुन कर रहे थे और नदी में से, उस वक्त तो नदी में पानी बहता था, तो नदी में से एक लोटा भर के उन्होंने पानी रखा और फिर दातुन करने लगे। किसी ने देखा, वहां जाके गांधी जी को पूछा कि बापू ये पूरी नदी बह रही है, इतना पानी है, फिर आपको लोटा भरने की क्या जरूरत है? तो गांधी जी ने उस वक्त बताया था कि मेरी जरूरत के हिसाब से इतना पानी काफी है, एक लोटा पानी मेरे लिए काफी है, बाकी का है वो बाकी लोगों के लिए है, मेरे लिए जितना जरूरी था उतना मैंने ले लिया है। ये उनकी सोच है। तो ये नॉन वायोलेंस बेस्ड सोसाइटी होगी, सस्टेनेबल सोसाइटी। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है एक लोटा पानी और हम 2 लोटा पानी ले रहे हैं तो ये वायोलेंस है। और फिर इससे क्या होगा, तो जो सोशल हार्मनी है उसमें विक्षेप आएगा। सोशल हार्मनी में विक्षेप उसी कारण आता है क्योंकि हम कोई वायोलेंट बिहेवियर करते हैं तो उसका रिएक्शन भी वैसा ही आता है, तो उससे हार्मनी का भंग हो जाता है। और चौथा ये है क्लासलेस एंड वैल्यू ड्रिवन। उच्च नीच का कोई भेद इस सोसाइटी में नहीं होगा, तभी ये सस्टेन करेगी। इक्वलिटी ये इसका बेस है, जो फाउंडेशन है ऑफ ए सस्टेनेबल सोसाइटी इज इक्वलिटी। हर एक व्यक्ति जरूरी है, हर एक व्यक्ति का महत्व है और हर एक व्यक्ति दूसरों के लिए उपयोगी है। अगर ये सोच है तो फिर ये हार्मनी भी है, ये नॉन वायोलेंस भी है और क्लासलेसनेस भी है, और यही वैल्यू है। तो ये गांधीयन मॉडल है सस्टेनेबल सोसाइटी का। टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल सोसाइटी, ये दोनों में क्या संबंध है? टेक्नोलॉजी गिव्स एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रिसीशन एंड सो ऑन। देखिए, कई बार ऐसा कहा गया है कि टेक्नोलॉजी के आने से हमारा जीवन सरल हो गया। सही है, जीवन सरल हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और प्रिसीशन भी है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी आने से जीवन में सुधार हुआ है, कंफर्ट बढ़ा है। द लेवल ऑफ कंफर्ट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू टेक्नोलॉजी। लेकिन गांधी क्या कहते हैं? Gandhi's criterion was that it shall not substitute, enslave, alienate and dehumanize the human beings. गांधी की सोच में केंद्र में व्यक्ति है, मनुष्य है। तो उन्होंने कहा है ये कि अगर टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी आई, प्रोडक्टिविटी आई, प्रिसीशन आया तो आया, लेकिन उसका अगर ये रिजल्ट होता है कि ये मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग्स को सब्स्टिट्यूट कर दे, उसकी जगह ले ले,
तो नहीं चलेगा। व्यक्ति के बदले टेक्नोलॉजी काम करने लगे, ये गांधी के विचार में सस्टेनेबल नहीं है। मनुष्य का जो महत्व है वो बिल्कुल घटना नहीं चाहिए। अगर कोई काम मनुष्य के बजाय टेक्नोलॉजी करने लगे तो मनुष्य का अवमूल्यन हो जाएगा। शिक्षा के बारे में तो ये कहा गया है कि मानो शिक्षक की जगह कोई टेक्नोलॉजी से दी जाए तो, और ये एफिशिएंटली दी जाए तो उसमें एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और प्रिसिशन आएगा। अगर ये हो सकता है तो a teacher deserves to be replaced। शिक्षक में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी न कर पाए, ऐसा वो करता हो। उसमें ऐसी कोई क्षमता है, क्योंकि ये मनुष्य है। टेक्नोलॉजी अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि मनुष्य की तरह सोच सके, कुछ डिसाइड कर सके। दे कैन फॉलो द प्री डिसाइडेड path। all instruments which are technologically developed, ये कोई अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, मनुष्य ले सकता है। अगर उसे मानो मनुष्य की जगह पर कोई मशीन ने काम करना शुरू कर दिया तो ये मशीन मनुष्य को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो ये फिर सोसाइटी सस्टेनेबल सोसाइटी नहीं रहेगी। दिस इज one of the criteria of Mahatma Gandhi, one of the criteria for sustainable society। दूसरा है एनस्लेव। अगर टेक्नोलॉजी एनस्लेव कर देती है, हमें आदत हो जाती है, फिर हम उस टेक्नोलॉजी के बिना काम ही नहीं कर पाते हैं। मोबाइल की आदत हो जाती है, फिर अगर मोबाइल नहीं है तो लोग बीमार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अभी ये इन द रिसेंट पास्ट कई किस्से ऐसे लिखे गए हैं। तो जैसे सब्स्टिट्यूट करती है टेक्नोलॉजी मनुष्य को, वो नहीं चल सकता, वैसे एनस्लेविंग ये भी नहीं चलेगा। गांधी जी कह रहे हैं कि मानो हमारे पास कोई व्हीकल है और हम उस व्हीकल से ही कहीं पर जा रहे हैं, तो अगर हम चलना ही छोड़ दें, हम अब चल ही नहीं पाते हैं, देन वी आर द स्लेव ऑफ दैट टेक्नोलॉजी। तो अगर ये हो पाया टेक्नोलॉजी से कि हमें गुलाम बना दिया, तो फिर तो ये सोसाइटी सस्टेन कर ही नहीं पाएगी। ये चारों चीजें, सब्स्टिट्यूट, एनस्लेव, एलियनेट एंड डीह्यूमनाइज द ह्यूमन बीइंग्स, ये चारों में से कुछ नहीं होना चाहिए। ये गांधी जी का सस्टेनेबल सोसाइटी और टेक्नोलॉजी के संबंध में विचार है। टेक्नोलॉजी का गांधी जी विरोध नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। गांधी जी अपने विचारों में बहुत खुले विचारों वाले थे। उन्होंने खुद ने बताया था कि मैं मशीन को पसंद करता हूँ, लेकिन वो मशीन कैसे होने चाहिए, यंत्र कैसे होने चाहिए। गांधी जी ने एक किताब लिखी है हिंद स्वराज, उसमें मशीनों का विरोध लिखा है उसमें, लेकिन ये समझाकर विरोध किया है कि अगर ये मशीन मनुष्य को सब्स्टिट्यूट कर दे, एनस्लेव कर दे, एलियनेट कर दे और डिह्यूमनाइज करे, तो फिर ये मशीन नहीं चलेगा, ये यंत्र बिल्कुल स्वीकृत नहीं होगा।
नहीं होना चाहिए। तो ये गांधी जी का सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के बारे में जो ख्याल है ये है। कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं गांधी जी के मॉडल के, क्योंकि ये वैल्यू एजुकेशन और सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए गांधी जी के विचारों का विशेष महत्व है। इट एम्फेसाइजेज द वर्च्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। सस्टेनेबल सोसाइटी क्या होगी? देखिए, ये सब जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं, जिसे हम फीचर्स कहते हैं, दे आर वैल्यूज। सिंप्लिसिटी, द वर्च्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। टी.एस. इलियट ने कहा है कि सिंप्लिसिटी कॉस्ट नथिंग बट एवरीथिंग। ये सिंप्लिसिटी बहुत ही डिफिकल्ट है। टू बी सिंपल इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये पहली बात, पहला फीचर है। सोशल एंड इनर पीस। अल्टीमेटली वी नीड पीस। चाहिए क्या? सुख शांति। कहीं पर सुख होता है लेकिन शांति नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये संभव ही नहीं है। अगर शांति नहीं है तो सुख कैसा? हम सुख को अगर भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि चीजें हैं हमारे पास, तो ये कोई सुख नहीं है। भौतिक उपलब्धियां होने से कोई सुखी नहीं होता। इनर पीस, दैट इज द ओनली मेजरमेंट ऑफ हैप्पीनेस। हमें शांति होनी चाहिए। अगर हम सुखी बनना चाहते हैं तो हम शांत बनना चाहते हैं। शांति, ये हमारी खोज है। व्यक्तिगत शांति ये भी इतनी ही जरूरी है जितनी सोशल। सिंप्लिसिटी ये भी एक फीचर है। नेसेसिटी एंड डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर and the valuation of the spiritual and the moral over the sensual and the material tools। तो भौतिकता के ऊपर जिसका प्रभाव होना चाहिए, ये भी गांधी जी ने यहाँ बताया है। तो ये गांधीयन मॉडल है। गांधी जी के हिसाब से ये जो हमें सोचना है, तो ये चीज़ें सस्टेनेबल सोसाइटी में होनी चाहिए। दीज वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल सोसाइटी। तो सोसाइटी में हमें ये सिखाना पड़ेगा, ये हमें सिखाना होगा। तो द करिकुलम फॉर वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन दीज फीचर्स। ये गाइडलाइन है। कैसे पाया जा सकता है? गांधी जी ने यही बताया है। तो उसका एक तो मार्ग है सत्याग्रह, दूसरा मार्ग है स्वदेशी, तीसरा मार्ग है सर्वोदय, और चौथा मार्ग है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। ये चारों गांधी जी ने दिए हुए मार्ग है। देखिए, सत्याग्रह, अगर सत्य का कोई आग्रह रखता है तो निःशंक उसे अहिंसक होना पड़ेगा। अहिंसक होने के लिए उसे अस्तेय का और अपरिग्रह का और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। तो पंचशील जिसे कहा गया है, पंच महाव्रत जिसे कहा गया है, उसका पालन करना होगा, सत्याग्रह। फिर है स्वदेशी।
गांधी जी ने स्वदेशी का भी बहुत स्पेसिफिक अर्थ दिया है। स्वदेशी का मतलब आजकल जो कहा जाता है वो गांधी जी ने नहीं कहा है। हमारे यहाँ एक ये शब्द देशी का उपयोग होता है। जो लोकल है उसके लिए हम देशी कहते हैं, देशज। हमारे आसपास के विस्तार का संदर्भ जब हम देते हैं तो हम उस चीज़ों का जो जो वहाँ पर बन रही है वो उसे हम देशी कहते हैं। मानो कोई एग्रो प्रोडक्ट है तो उसमें हम अगर हमारे विस्तार में बनी हुई है, हमारा विस्तार का वो प्रोडक्ट है तो हम उसे देशी कहेंगे। कहीं और जगह से आ रही है तो हम उसे परदेशी कहेंगे। पहले तो कोई 100-150 किलोमीटर दूर चला जाए तो भी उसे परदेश मानते थे। गांधी जी ने स्वदेश का बहुत स्पष्ट अर्थ दिया है। स्वदेश का मतलब जहां तक हम बैलगाड़ी लेके जा सके और वापस आ जाए उतना उतना अंतर वो हमारा देश है। तो गांधी जी ने बताया है कि अगर हमें कुछ चाहिए, हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमें इसी विस्तार से मिल जानी चाहिए। वहीं जो मिल रहा है उसी से हमें काम चलाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है जो हम इस एरिया में हम नहीं बना रहे हैं, हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें चाहिए, तो या तो हमें वो प्रोड्यूस कर लेना चाहिए या फिर उसके बगैर चला लेना चाहिए। तो ये स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब ये भारतवर्ष में जो बन रहा है वो, ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा है। हमारे राष्ट्र में जो बनेगा वो हमारे लिए स्वदेशी होगा, ऐसा अर्थ गांधी जी का अर्थ नहीं है। गांधी जी यही बता रहे हैं कि आसपास में जो बन रहा है वही वो स्वदेशी है। तो कुछ ऐसा है जो दूर से लाना पड़े, कहीं से हमें खरीदना पड़े, कोई और उसे हमें लाकर दे तब हम उसे पा सकते हैं, तो ये स्वदेशी नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हमें चाहिए तो या तो हमें खुद बना लेनी चाहिए या फिर उसके बगैर हमें चला लेना चाहिए। तीसरा है सर्वोदय, सर्व का उदय। जो इक्विलिटी की बात हम कर रहे थे, ये सब एक दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है। सत्याग्रह जो रखना है हमें, तो ये स्वदेशी का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हमारी ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि हमें कहीं और से कुछ लाना पड़े। स्वदेशी का हम ख्याल रख रहे हैं तो सर्व का उदय भी होगा, क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ बन रहा है वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ही हम उपयोग कर रहे हैं। तो वहीं पर ही ये पूरा इकोनॉमी का जो साइकिल है वो चलता रहेगा, सर्वोदय होगा। समस्या है तो फिर भी होगी, क्योंकि ये समाज है, भांत भांत के लोग हैं। तो फिर उसके लिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी ने दिए हैं। 18 प्रोग्राम्स आर देयर अंडर दिस टाइटल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। शिक्षा से लेकर बहुत कुछ उसमें दिया है। तो ये 18 प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो ये सस्टेनेबल सोसाइटी तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये दीज आर द मेजर्स टू अचीव सस्टेनेबल सोसाइटी। अगर हमारे समाज को हमें सस्टेनेबल करना है, हिंदी में इसे स्थायी कहते हैं शायद, स्थायी समाज। तो स्थायी बनाने के लिए गुजराती में इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है संपोषित, टकाऊ, टकाऊ समाज। तो ये
इसके मेजर्स है। द कंटेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसका कंटेंट है। ये डेवलपमेंट गोल्स यूनेस्को ने दिए हैं, ये 17 है। नो पॉवर्टी, देखिए ये जो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इट इज़ अवेलेबल, इजीली अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ यूनेस्को। नो पॉवर्टी ये 17 है। अगर सस्टेनेबल सोसाइटी हमें बनानी है, ऐसा डेवलपमेंट करना है जो सोसाइटी को सस्टेन कर सके, तो ये 17 गोल 17 गोल्स हमें अचीव करने हैं। एक है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions। और 17वां है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ये किसी एक की जिम्मेवारी नहीं है, ये प्रत्येक की जिम्मेवारी है। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोचेगा, तब जाके ये सोसाइटी सस्टेनेबल सोसाइटी बन पाएगी। एक सस्टेनेबल सोसाइटी इंडेक्स भी है, वेबसाइट पर मैं सर्च कर रहा था तो सर्फिंग में ये भी मुझे दिखा, जिसमें ये एक इंडेक्स दिया गया है। 154 कंट्रीज के लिए ये कैलकुलेट किया है इंडेक्स, लेकिन उसमें 3 अलग अलग आयाम दिए हैं और तीनों आयाम के लिए अलग अलग अंकों का उसमें आलेखन है। एक तो है ह्यूमन वेल बीइंग, दूसरा है एनवायरमेंट और तीसरा है इकोनॉमी। ये 3 एस्पेक्ट को लेकर ये सोसाइटी सस्टेनेबल है तो कितनी है, ये तय किया जाता है। ये 3 एस्पेक्ट उसमें दिए गए हैं। तो ये एक मोटे तौर पर मुझे जो बताना था वो बातें थी। आप सबका बहुत बहुत आभार।